One of our students has asked me to, read this passage because he felt that the passage is quite dense for him. So he asked me to, read this passage effectively. So I'm making this video for him, and you can watch it now. So let's start reading. Reading how effective reading. So we'll start now. Nearly a century ago, biologists found that if they separated an invertebrate, biologists found something. This is yellow signal. This biologist found something. I have told you in the past in the session how to use this type of signal: red signal, yellow signal, green signal. So watch the videos again if you are not well aware of this thing. So let's continue. So this is yellow signal. Nearly a century ago, biologists found that if they separated an separate invertebrate animal embryo into two parts, at an early stage, it would survive and develop as two normal embryos. सर्वाइव एंड डेवलप टू नेट बोलना क्या चाहता है यहाँ पे अगर एक इन्वर्टेब्रेट का एम्ब्रियो मैंने सेपरेट किया है then it will survive, both will survive and develop as two normal embryos, this embryo 1, this embryo 2. Okay, let's move on. This led to belief, this led them to beliefs. Again yellow signal, they believe something. And whenever I said that, whenever you see the word belief, बिलीफ रहेगा किसी का, फिर देन बिलीफ को नेगेट करने के लिए कुछ ऑथर अपना स्टेटमेंट देगा एंड देन जस्टिफिकेशन ऑफ दोस थिंग्स ऑफ दैट नेगेशन. सो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जब भी बिलीफ वाला वर्ड आता है तो स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. So let's read what's the belief and what's the negation, what's the justification the author has given. Let's read that. This led them to believe that the cells in the early embryo are undetermined. Early embryo are undetermined in the sense that that each cell has the potential to develop in a variety of different ways. Each cell has potential, different ways. Later, now a big term, big yellow signal later. Later biologists found, biologists को वापस से कुछ मिला that the situation was not simple. अभी देखो negation start होगा. Earlier they believed something, now later they found something else. So now the negation will start. It matters in which plane the embryo. Now it's talking about plane. Now it is giving the justification. Over here the author will give the justification. These are all green signal. Justification of what? That the belief was wrong, that the embryo are undetermined in the sense this statement is wrong. It can be determined. What's it's given? If it is cut in a plane different from the one used by the early investigators, it will not form two embryos. Here it said two whole embryos. Over here it is saying two non-whole embryos. It's started to negate the belief. अभी पूरा वही नेगेशन में चलेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन देगा ऑथर. अ डिबेट अरोज ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग, व्हिच सेल्स आर डिटरमाइंड, वही बकवास कर रहा है. यहाँ पे फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है. बट अभी यहाँ पे देखो रेड सिग्नल, ट्रांजिशन वर्ड but the debate could not be resolved because no one was able to ask crucial question. डिबेट रिजॉल्व नहीं हुआ. कौन सा डिबेट? ये वाला डिबेट ना, ये बिलीफ कौन सा गलत हुआ, दैट वाज द डिबेट. ये वाला डिबेट था. इट विल नॉट फॉर्म टू एम्ब्रियोस, इट फॉर्म्स टू एम्ब्रियोस. दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज जनरेट हो गया. तो इसके बेसिस पर डिबेट चालू हुआ लोगों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में. एंड इट कुड नॉट बी सॉल्व, द डिबेट कुड नॉट बी सॉल्व बिकॉज नो वन वाज एबल टू आस्क द क्रूशियल क्वेश्चन आस्क नहीं कर पाए. तो जो भी ट्रांजिशन वर्ड के बाद जो भी टर्म्स आते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, क्रूशियल क्वेश्चन आस्क नहीं किया वो लोग ने, यहाँ पे फुल स्टॉप है. I'll not read much. Next, recent discovery in molecular biology, however, again transition word, however, have opened up the prospects for the resolution of the debate. तो molecular biology ने open किया, क्या open किया? Resolution of the debate, possibility open किया वो debate को resolve करने के लिए. Now investigators think that they know at least some. अभी investigators को क्या क्या मिला नहीं मिला
वो सब ग्रीन सिग्नल्स है. They have been able to show what? Yellow signal. Green signals are those signals जो कि मोस्टली irrelevant होता है. रेड सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट, येलो सिग्नल moderately important. They have been able to show that in a sense cell determination begins. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है. सेल डिटर्मिनेशन बिगिंस इवन बिफोर एन एग इज फर्टिलाइज्ड. ठीक है, सेल को डिटरमाइन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? बिफोर द एग इज फर्टिलाइज्ड. ओके, अप टिल हियर आई हैव रेड दिस मच. तो आइडिया क्या था? एक बिलीफ था. फर्स्ट पैरा में एक बिलीफ था. क्या बिलीफ था? एम्ब्रियोस आर अनडिटरमाइंड. एम्ब्रियोस आर अनडिटरमाइंड. देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था एम्ब्रियोस आर अनडिटरमाइंड इन अ सेंस, एंड बाद में ये बिलीफ को नेगेट किया ऑथर ने बाय गिविंग सम जस्टिफिकेशन दिया. पूरा जस्टिफिकेशन में दिया यहाँ पे, यहाँ से आता है ग्रीन सिग्नल में. एंड लास्ट में क्या बोला? सेल डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी सेल्फ डिटर्मिनेशन बिगिंस. कब बिगिन होता है? एग, ये जो एग फर्टिलाइज होने के पहले ही सेल डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिकली द जिस्ट ऑफ दिस फर्स्ट पैरा. ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ सोचना ही है, बस हमको ये आइडिया फाइंड करना है क्या क्या बोल रहा है मेन पार्ट में. और and then we have to locate the keywords that been mentioned in the question. So let's now move to the next para. Studying sea urchins. Sea urchins are a kind of organism found in sea. Anyway, biologist Paul Gross. One more thing, whenever you see a name like over here Paul Gross, अभी तो पॉल ग्रॉस पूरा नाम बोलेगा स्टार्टिंग में, पहली बार मेंशन किया ना इस बंदे का नाम. सो फुल नेम ही विल मेंशन, तो पैसेज विल मेंशन. लेटर जब भी इस बंदे को रेफर करेंगे ना, दे विल से जस्ट ग्रॉस, सरनेम से बुलाएंगे. सो व्हेनेवर यू रीड एनी नेम, नाम पूरा मत पढ़ो, डायरेक्ट सरनेम पढ़ो. सो दिस विल सेव अ बिट ऑफ टाइम. लेट्स रीड. स्टडीइंग सी अर्चिन्स, बायोलॉजिस्ट ग्रॉस फाउंड दैट येलो सिग्नल. क्या फाउंड किया उसने? फाउंड दैट an unfertilized egg contains substance that function as morphogenetic determinants. ये बहुत बड़ा टर्म है, मेरे से याद नहीं होगा पेपर में. सो आई रीड इट एज MD. अनफर्टिलाइज्ड एग कंटेन्स सब्सटेंस दैट फंक्शन एज MD. अब MD क्या है नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पैसेज में दिया होगा नहीं होगा. लेट्स सी व्हाट इज MD. लेट्स सी क्या है नहीं है पता नहीं. दे आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म. ये ग्रीन सिग्नल है, कहाँ लोकेट करता है वो MD. फुल स्टॉप कहाँ पे? यहाँ पे फुल स्टॉप है. नेक्स्ट, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड द सब्सटेंस बिकम एक्टिव. ठीक है, ये मॉडरेटली येलो सिग्नल है. जब फर्टिलाइज होता है तब सब्सटेंस एक्टिव होता है. एंड इसका मतलब क्या हुआ? जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तब इनएक्टिव था, फर्टिलाइज होने के बाद एक्टिव हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू विल रीड क्रिटिकली. यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर इन्फर में कर सकता हूँ ये चीज. दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीडिंग. लेट्स मूव ऑन. Presumably govern the behavior of sorry, where was I? Behavior of the genes they interact with. Okay, green signal है. अभी since ये this is a red signal transition, since ऐसा होता है then comma के बाद interesting important part है. And there I can see multiple commas, 1 2. तो पूरा commas नहीं पढ़ना. I have told you the thing. This is called a parenthetical sentence. कॉमा के सबसे लास्ट वाले कॉमा के बाद इंपॉर्टेंट चीज होता है. सो आई विल रीड दैट. सिंस द सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सिंस कौन सा सब्सटेंस? ये MD. unevenly distributed in the egg, their resulting cells are different from the start and so can be qualitatively different in their own activity, in their own gene activity. क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये जो सब्सटेंस है MD है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, and this is why they are different qualitatively. डिफरेंट क्वालिटी है दो सेल्स के बीच में. रीजन फाइंड कर रहा है क्यों दो अलग अलग चीजें होता है, इसका रीजन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. द सब्सटेंसेस MD
That Gross studied, Gross मतलब ये Paul Gross, I told you earlier, बस surname लिखाएगा. Are maternal messengers. वो substance क्या है? Maternal messengers है. Just a minute, I'll change the color. Maternal messengers. RNA products of certain genes, so and so forth. यहाँ पे full stop है. He and other biologists studying a wide variety of organisms have found that. क्या found किया? This RNA diet, यहाँ पे comma comma comma. This RNA diet, a class of protein that binds to DNA. Comma comma बकवास बात कर रहा है. I'll directly jump to this part. Okay, let's move on. मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा पेपर में, बस इंपॉर्टेंट चीजें कलेक्ट करूंगा एंड देन आई गो टू द क्वेश्चंस. और फिर अगर लेट्स से अगर इस पार्ट में से अगर लेट्स से क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे को पता है ना ये पार्ट कहाँ पे है, सो आई डायरेक्टली जंप टू दिस पार्ट एंड फाइंड आउट द आंसर्स एंड देन इवैल्यूएट द ऑप्शंस. लेट्स रीड फ्रॉम हियर. वन सिंथेसाइज्ड, एक बार सिंथेसाइज कर लिया गया. वन सिंथेसाइज द हिस्टोन्स मूव इनटू सेल न्यूक्लियस वेयर सेक्शन ऑफ डीएनए रैप अराउंड देम टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स बीड्स. ये बकवास कर रहा है. बीड्स आर डीएनए, ये भी बकवास कर रहा है. बीड्स क्या होता है नहीं होता वो बोल रहा है. एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बीडेड डीएनए स्ट्रिंग्स दैट गाइड द फेट. अच्छा, अभी यहाँ पे बता रहा है एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बीडेड, रीजन दे रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए जो गाइड करता है. क्या गाइड करता है? फेट ऑफ द सेल्स इन विच दे आर लोकेटेड. फेट गाइड करता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट why this are two things are different and why some are same. Two embryos, are different. उसका रीजनिंग यहाँ पे दिया लास्ट लाइन में एकदम. एंड इट इज रीजन इज व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ द बीडेड डीएनए स्ट्रिंग्स वो अलग अलग होता है. सो दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ दिस पैसेज. मैंने पूरा अच्छे से पैसेज नहीं पढ़ा, बस ऊपर ऊपर से मेन मेन चीजें आइडिया लेके मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा. दिस इज हाउ यू शुड रीड. बकवास की चीजें मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना. जो जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन वर्ड है वो दिमाग में रखो. जो जो इंपॉर्टेंट आइडिया दिया कौन से पैराग्राफ में दिया वो दिमाग में रखो. पैराग्राफ का ऐसा मैपिंग बनाओ एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. द पैसेज इज मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टेड एट विच काइंड ऑफ ऑडियंस. दिस इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीटी में नहीं आता जनरली, बट स्टिल let's see how to attack this type of questions. The passage is most probably directed. कौन से टाइप के ऑडियंस के लिए पैसेज बनाया है? ये पैसेज में बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो कुछ बच्चों के लिए बनाया गया या फिर साइंटिस्ट के लिए बनाया गया. कुछ तो कोई पढ़ेगा, ये बंदा कोई पर्सन पढ़ेगा इसको, और वो हिस्टोन्स क्या है ये सब वर्ड है ना, साइंटिफिक टर्म्स है ओवर हियर. एक लेमैन तो नहीं पढ़ेगा, एजुकेटेड बायोलॉजी मैन पढ़ेगा. एंड कौन सा बायोलॉजी? ये वो समथिंग अबाउट सेलुलर बायोलॉजी कोई टाइप का पर्सन पढ़ेगा. लेट्स इवैल्यूएट द ऑप्शंस नाउ. स्टेट लेजिस्लेचर्स आर दोज पीपल हु मेक लॉज. तो वो ये पढ़ के बंदा क्या करेगा? लॉज के लिए फंडिंग ये क्या करेगा क्या? सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. ये पैसेज इज ओनली फॉर द पीपल हु आर indulged in this biology topic. स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ काम नहीं है. साइंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन मॉलिकुलर जेनेटिक्स. ठीक है, सही लग रहा है सही है. साइंटिस्ट वर्ड दिया, मे बी पॉसिबल. आई होल्ड ऑन, आई नॉट मार्क इट. रीडर्स ऑफ alumni newsletter published by the college that Paul Gross attended. एक कॉलेज है, कॉलेज में डिफरेंट ब्रांचेस के पब्लिक बैठे हैं. एक कॉमर्स वाला ये पढ़ के क्या करेगा? तो बेसिकली दिस पैसेज वाज अबाउट बायोलॉजी पीपल, वाज फॉर बायोलॉजी पीपल. तो कॉमर्स वाला पढ़ के क्या करेगा? अगर कॉमर्स वाला नहीं पढ़ा तो मैं कॉलेज के पब्लिक न्यूज़लेटर में क्यों डालूं? न्यूज़लेटर में सब लोग पढ़ने वाले लोग, सब टाइप के लोग के लिए चीजें लिखा जाता है. एंड सेकेंडली दिस इज अबाउट अलुमिनाई. मैं साइंटिस्ट बन चुका हूँ, मैंने कुछ भी रिसर्च किया, मेरे न्यूज पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे क्यों दिया रहेगा? एंड वन मोर थिंग, पॉल ग्रॉस का आइडिया बस इतने पैसेज में ही, इतने पार्ट में ही दिया है, ये वाला पार्ट मेंशन ही नहीं किया. सो दिस इज नॉट एंटायरली कवरिंग द एंटायर पैसेज, दिस ऑप्शन. It is just covering the second para. So this option is also eliminated.
मेरे को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सब कुछ कवर करे, इधर से लेके इधर तक पूरा कवर कर रहे हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. मराइन बायोलॉजिस्ट studying the process that give rise to new species. New species over here is an alien idea. कहीं पे भी न्यू स्पीसीज की बात किया हुआ है? न्यू, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल की बात कर सकते हैं, लेकिन न्यू स्पीसीज ये तो एकदम ही अलग ही हो गया ना स्पीसीज. सो ऑप्शन, एक टाइगर हो गया, एक लायन हो गया, दो अलग अलग स्पीसीज. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. ऑप्शन 5, अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी मेजर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोर्स. ये कॉलेज के बच्चे की बात कर रहा है. अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी मेजर्स, ठीक है. ठीक है, अभी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5 में से मेरे को फाइट करना किसको सही है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है? लेट्स सी, लेट्स सी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स? कहीं पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया हुआ है टर्म या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स? एज सच कुछ दिया नहीं है लगता है. हाँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया, देखो. recent discovery in molecular biology, molecular genetics कहीं पे भी नहीं दिया. एंड आई हैव मार्क्ड द रेड सिग्नल. मैंने क्या बोला था, ट्रांजिशन वर्ड के आसपास से क्वेश्चन आएंगे. हाउएवर इज द ट्रांजिशन वर्ड, उसके आसपास से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एरिया. सो दैट इज व्हाई molecular biology will be the answer. Option 5 will be the answer. Option 2 is eliminated. Option 2 is eliminated and option 5 is the answer. दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन molecular genetics as such टर्म दिया ही नहीं है पैसेज में, molecular biology दिया है. Okay, so this is how I got option 5. Now let's read the next question. The main topic of the passage is, main topic find करना है, ठीक है. The early development of embryos of lower marine organism. See over here, lower marine organism. ये वर्ड कहीं पे दिया है पैसेज में? नहीं दिया. This is an alien word. So this option is eliminated. The main contribution of modern embryology to molecular biology. Again, modern embryology, ये टर्म कहीं पे दिया है पैसेज में? कहीं पे भी दिया, तुम पढ़ लो पूरा पैसेज वापस से. वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा पैसेज पढ़ा है एंड आई हैव नॉट सीन एनी सच वर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज सच. सो दिस इज आल्सो एन एलियन आइडिया. उसका कंट्रीब्यूशन क्या है नहीं है मेरे को नहीं दिया है. सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. ऑप्शन 3, the role of molecular biology in disproving the older theories of embryonic development. Okay, ये ठीक लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में एक थियरी था, एक बिलीफ था. बिलीफ था कि थियरी था? बिलीफ था, थियरी नहीं था. वी विल कीप दिस ऑप्शन फॉर नाउ. लेट्स सी, अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिला इससे तो that will be the right answer. Otherwise we have to mark this one. So we will see this one later. मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ. दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन. अगर जज नहीं कर पा रहे तो लेट्स लीव दैट ऑप्शन फॉर नाउ. लेट्स रीड द नेक्स्ट ऑप्शन. सेल डिटर्मिनेशन एज एन इशू इन द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. पैसेज वाज अबाउट सेल डिटर्मिनेशन. सेल डिटर्मिनेशन वो इशू था, सेल डिटरमाइन नहीं कर पा रहे. लास्ट में भी सेल डिटरमाइन ही कर रहे हैं ना यहाँ पे. गाइड द फेट ऑफ द सेल, basically it's determining the cell. So this one looks like also correct. Option 4, scientific dogma as a factor in a recent debate. Scientific dogma, alien thing. अब वो भी एज अ फैक्टर बोला है. किसका फैक्टर इन द रिसेंट डिबेट ओवर वैल्यू. ये भी एलियन हो गया ना. वैल्यूएबल है कि नहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब कुछ दिया ही नहीं है पैसेज में. सो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड. सो आई हैव टू चूज बिटवीन 3 and 4. द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन disproving older theories of embryonic development. अब यहाँ ऑप्शंस में ढूंढते क्या गलतियां है. ऑप्शन 3 में देखो, ओल्डर थियरीज. पैसेज में क्या था? बिलीफ था.
let's say for now let's say belief is equal to theory, which is not correct. Let's, लेकिन तुम अगर सोच रहे हो belief और theory same है, तो for the sake of that thing let's equate both this thing. तो वहां पे पैसेज में थियरी था कि थियरीज था, बिलीफ था कि बिलीफ था, एक ही बिलीफ था ना. दिस लेट देम टू बिलीव दिस, दीज नहीं बोला, दिस दैट सेल्स आर, एक ही बिलीफ था यहाँ पे. क्या बोला था, सेल्स इन द अर्ली एम्ब्रियो आर अनडिटरमाइंड इन द सेंस दैट ईच सेल हैज द पोटेंशियल टू डेवलप. एक ही बिलीफ था उनका, मल्टीपल बिलीफ नहीं थे. एंड इट हैज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट रोल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन डिस्प्रूविंग दिस थिंग. यहाँ पे देखो कैसे कैसे ऑप्शन फॉर्म किए बच्चों को ट्रैप करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थियरीज नहीं था, एक ही थियरी था, एक ही बिलीफ था. एंड सेकेंडली रोल एज सच रोल कुछ बताया नहीं है. So option B is eliminated. Option third is eliminated. And cell determination as an issue in the study of molecular biology, embryonic development. हाँ ये दिया हुआ है, हम सेल डिटरमाइन नहीं कर पा रहे. इन द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, जब फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो डेवलप होता है. हाँ ये सब सही है, एम्ब्रियो दिया हुआ है. ओके फाइन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. बेसिकली पूरा वही पैसेज वही बताना चाहता है. So option 4 will be the answer. See how I've eliminated the options and I reached the right answer. Let's do the next question. This is one of the difficult passage and the question is also difficult. मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, disclaimer है. Anyway, but still I'm trying to try to make it as lucid as possible. Let's do the question. According to the passage, when biologists believe, बायोलॉजी ने बिलीव किया, ये वाला टर्म फर्स्ट पैराग्राफ में था बिलीव का. ठीक है, अगर मेरे को आंसर ढूंढना है तो आई हैव टू सी द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, बिलीव दैट द सेल्स इन द अर्ली एम्ब्रियोस वर अनडिटरमाइंड. they made which of the following mistake. इन्होंने मिस्टेक क्या फाइंड किया, मिस्टेक क्या किया था, ये लोग ने अज्यूम कर लिया था ना कि अनडिटरमाइंड हो सकता है सेल. क्या assume किया जाएगा, cells in the early embryos are undetermined in the sense that each cell has the potential to develop in the variety of different ways. ठीक है, एक एम्ब्रियो मल्टीपल वेज में डिवाइड हो सकता है, ये अज्यूम कर लिया था वो लोग ने. अब बाद में यही assumption गलत हो गया उनका. later they have found something different. Okay fine, so I have to find this one assumption. About the assumption, they did not attempt to replicate the original experiment. ये पूरा एलियन चीज बता रहा है. replicate the original experiment, alien, eliminated. Option 2, they did not realize that there was connection between the issue of cell determination and the outcome of the separation experiment. Realization की बात ही नहीं की है. They have assumed कि ऐसा होता है, realize करने की बात ही नहीं हो रहा, उन्होंने assume कर लिया ऐसा होता है. They assumed, okay fine, यहाँ तक ठीक है, that the result of experiment on embryos did not depend on the particular animal species such as experiments. For such experiments, मेरे को समझाने क्या बोल रहा है ये. I'll keep this for now. Why keep? Because assume word दिया हुआ, they have assumed something. Fourth, they assume that it was crucial to perform separation experiment at the early stage. वो लोग ने assume नहीं किया separation experiment करना है, वो लोग ने बस बोल दिया हाँ ये डिवाइड होंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पैदा होगा, टू डिफरेंट इंडिविजुअल में पैदा होगा. दे हैव अज्यूम दैट, एक्सपेरिमेंट करने की बात ही नहीं की है वो लोग ने. अगर एक्सपेरिमेंट करते तो उनका वहीं पे नेगेट हो जाता बिलीफ. सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. नेक्स्ट, they assume that different ways of separating an embryo into two parts would be equivalent as far as the fate of the two parts are concerned. Exactly, this is given in the passage. What they have done, what they have assumed, तुम कैसे भी डिवाइड करो डिफरेंट वेज में, सेपरेट करो एम्ब्रियोस को. I don't know whether I've written it correctly. एम्ब्रियोस, ओके, कैसे भी सेपरेट फिर डिवाइड करो
उनका फेथ इक्विवेलेंट होगा, सेम ही होगा। और क्या सेम होगा कि दोनों डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल में डिवाइड होंगे। फेथ वाज कंसर्न्ड। लास्ट में क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, इंडिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट है मतलब इंडिपेंडेंट है। कैसे भी तुम लोग काटो इंडिपेंडेंटली, वो लोग इंडिपेंडेंट है उनका फेथ। और लास्ट में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बीडेड डीएनए स्ट्रिंग्स एंड दिस गाइड द फेट ऑफ द सेल्स एम्ब्रियोस। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट है मतलब डिपेंडेंट नहीं है, सबका सेम ही होगा, किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, सबका जैसा होगा वैसे ही होने वाला है। सो एंड दे हैव अज्यूम्ड दैट थिंग। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। आई विल नॉट लुक बैक टू ऑप्शन 3 क्योंकि मेरे को ऑप्शन 5 परफेक्टली सही मिल गया मेरे को। सो आई विल मार्क दिस वन एंड मूव ऑन। Fourth question. The passage suggests that which of the following plays a role in determining whether an embryo separated into two parts will develop as two normal embryos. मेरे को याद है ये फर्स्ट पैराग्राफ में था एंड समथिंग अबाउट कटिंग की कुछ बात किया हुआ था, मैंने ग्रीन सिग्नल दिया था. It matters in which plane the embryo is cut. कोई ऑप्शन दिया है, द प्लेन इन विच द कट इज मेड दैट सेपरेट्स एम्ब्रियो, थर्ड करेक्ट है. तो ये गया. See how I'll eliminate the options. ये भी गया. 1 and 3, 1, 2 and 3. I have to see whether 2 is correct or not. अगर 2 सही है तो ऑप्शन 5 आंसर होगा, अगर 2 सही नहीं है तो ऑप्शन 4 आंसर होगा. So I'll just see 2. The instrument with which the separation is accomplished. यहाँ पे instrument as such कुछ word दिया हुआ नहीं है. Instrument दिया, let's read quickly. Skim करते हैं. Instrument या फिर instrument related any synonyms कुछ दिया है, नहीं दिया. ओके नहीं दिया है. सो ऑप्शन ये भी गलत है. ऑप्शन 2 इज रॉन्ग. तो जो भी ऑप्शन 2 ये गलत हो जाएगा. मैं फर्स्ट चेक नहीं करूंगा सही है कि नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉट द आंसर. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. दिस इज द राइट आंसर. आई विल नॉट चेक द फर्स्ट पार्ट. मैंने कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आई हैव रीच्ड द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू पैसेज द मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स एमडी सेकेंड पैराग्राफ में था, मेरे को याद है. अगर आंसर मेरे को ढूंढना है तो सेकेंड पैराग्राफ में ढूंढना है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स present in the unfertilized cell are which of the following? MD are what? MD यहाँ पे दिया है. They are located. MD कहाँ लोकेट किया वो दिया है. The substance are maternal messengers. The substance, which substance? MD are maternal messengers RNA products. So this is my keyword, maternal messengers RNA product. ऑप्शन में ढूंढते ये कीवर्ड कहाँ दिया है, maternal messengers RNA. बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है. I have got the answer. So this is how we read a passage effectively. Critically, I have not read the entire passage. I have selectively chose parts from the passage like this transition word. I'll change the color like this transition word. Then this yellow signals, green signals I have left it. This part I have completely left. I didn't read it. Then again over here I have not read this part because it was complete bullshit. लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज बता दिया कि फेथ क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये पूरे पैसेज का कंक्लूजन बता रहा है. Anyway, whenever you find a passage which has multiple paragraphs, तो कोई भी पैसेज ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है पैसेज का, अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स मिले, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 लेट्स से, तो उसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एनी पैसेज, क्योंकि फर्स्ट लाइन में उसका टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता है, उस पैराग्राफ में आइडिया का टॉपिक इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट लाइन में जनरली ऐसा होता है कंक्लूजन देता है. एंड अगेन इसमें टॉपिक इंट्रोडक्शन
या तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है नया, या फिर नेक्स्ट वाले का कंटिन्यूएशन करता है एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट, दोनों में से कुछ होता है, एंड हमेशा फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन होता है। एंड ये वाला स्ट्रक्चर जनरली साइंटिफिक पैसेजेस में मिलेंगे, और साइंटिफिक पैसेज में एक और चीज मैंने क्या बताया, बिलीफ्स। जब भी बिलीफ दिखता है तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ बिलीफ रहेगा किसी का, किसी XYZ पर्सन का, या फिर किसी का तो बिलीफ रहेगा, देन देयर विल बी नेगेशन बाय द ऑथर विल नेगेट दैट बिलीफ, एंड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट वो अपना एग्जाम्पल्स देगा, जस्टिफिकेशन देगा, कुछ ना कुछ करेगा, एंड फाइनली वापस से उसको कंक्लूड करेगा। ये पैसेज का स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज हाउ I have done this passage. I've tackled the questions. I've eliminated the options using my technique. I have given the technique in my session. And okay, I hope you have got this. If you have any doubt, you can ask me again. Okay, bye.